शुक्रिया पाकिस्तान। बांग्लादेश का पाकिस्तान की तरफ से हिमायत पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान की तारीफ। मुशीर खेल डॉक्टर आसिफ नजरुल ने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि शुक्रिया पाकिस्तान। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से निकाले जाने पर एहतजाजन भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट किया और बांग्लादेश के साथ खड़े होने का फैसला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये फैसला बिल्कुल मुनासिब है। मोदी हुकूमत की मकबूजा कश्मीर में मुजालिम पर खामोश दिखाई देते हैं। इस हवाले से भी आपको बताएंगे, बराह रास्त आपको दिखा रहे हैं वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान तकरीब से Collaboration is to increase the bilateral relationships in between Jordan and Pakistan to new heights. There have been brotherly relationships for a very long time, and this is a very good opportunity for us to transform these very brotherly ties into economic and strengthen relationships in trade, overall economic cooperation and bilateral cooperation in different sectors. I had a very positive and way forward-looking discussion with my counterpart, and I'm really happy to see that His Excellency does have an approach of seeing not only Pakistan and Jordan can benefit from each other, but how we can really facilitate our business people, our business environment to see opportunities in the region also. We can work on our strengths, we can facilitate our business people, we can see opportunities for collaborations, we can see venues for joint ventures, and then we can collectively see how Pakistan and Jordan can see Central Asia, ASEAN countries, Africa, European markets, US, and many other more places. This collaboration is very crucial at this time, and we are very thankful for His Royal Highness who recently visited Pakistan as a gesture of his cooperation and his brotherly ties with Pakistan. I'm really thankful to my brother also for extending an invitation to me for visiting Jordan, Amman, inshallah. And before the 11th session, it's going to be our responsibility to make sure that whatever is decided today, we expedite it at a very quicker and faster way, so that inshallah the 11th session is more constructive, more result-oriented, and more with the optimal level of results coming in forward. So I'm really thankful to you for your visit to Pakistan, so your own second home. And I'm really thankful to your team, which has really extended its cooperation with us. I'm really thankful to the ambassador, who's, I think so, has played a very positive, vital role in this. And at the same time, I'm really thankful to the business chamber and community who have come along with you. At the same time, I'm really thankful to our technical teams, especially Ministry of Economic Affairs Division for facilitating all of us and this 10th session. The technical teams from all the ministries, the Secretary of Commerce himself with his team sitting with us, and at the same time, the business community of Pakistan, FPCCI, for participating in this. Ladies and gentlemen, thank you very much for really making this session a success. And once again, my thanks to my dear brother and his team coming from Jordan and the ambassador over here. Thank you very much. सालिसी की जाएगी, उसे किसी सूरत में पाकिस्तानी कौम तस्लीम नहीं करेगी। हम ये पूछना चाहते हैं कि जब जंगबंदी की गई थी तो उस वक्त कहा गया था कि ये पानी का मसला, इंडस वाटर ट्रीटी का मसला हम हल करेंगे और भारत ने जो हमारे पानियों पे कंट्रोल हासिल किया है उसको हम खत्म कर देंगे। हमसे कहा गया था कि कश्मीर पे बात होगी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि तकरीबन अब 8-9 महीने के बाद भी कोई पेशरफ्त इस सिलसिले में नहीं हो रही, बल्कि हो ये रहा है कि फलस्तीन में जो पीस बोर्ड के नाम पर नाटक रचाया जा रहा है, पाकिस्तान ने इसमें शिरकत करके पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों की तौहीन की है। और आगे के मराहिल तो ये हैं कि अमेरिका का ये दबाव होगा कि वो ISF यानी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में शामिल हों,
गोया इसका मतलब यह है कि फलस्तीनियों की मदद करने के बजाय इसराइल की मदद की जाएगी, इसराइल के खिलाफ लड़ने के बजाय हमास को डिसाम। चीन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़ा है। चीनी सफीर की वफाकी वज़ीर दाखिला से अहम मुलाकात। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की मज़म्मत और मुतासरीन से दिली हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बलोचिस्तान में मुनज़्ज़म और तयशुदा मंसूबे के तहत दहशतगर्दी की गई। बोले चीनी शहरियों और प्रोजेक्ट्स की हिफाजत बेहद अजीज है। दुश्मन पाक चीन दोस्ती को किसी सूरत जख्म नहीं पहुंचा सकता। चीनी शहरियों को हर मुमकिन सिक्योरिटी फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। चाइनीज की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट बनाया जा रहा है। मोहसिन नकवी और चीनी सफीर जियांग जी डोंग ने इंसदादे दहशतगर्दी समेत दाखिली सलामती सिक्योरिटी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इंटेलिजेंस शेयरिंग और साइबर क्राइम्स के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया है। आपको अपडेट करते चले, चीन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़ा है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर रात गए मरियम औरंगजेब का अंदरून शहर का दौरा। सीनियर वज़ीर का मोची गेट समेत दीगर गुंजान इलाकों में बसंत इंतजामात का तफसीली जायजा। बाजारों में फरोख्त QR कोड पतंगों के साइज, चरखी के बगैर QR कोड डोर का मुआयना। जबकि सीनियर वज़ीर पंजाब ने बसंत को महफूज बनाने के लिए SOPs पर अमल दरामद की जांच की। मरियम औरंगजेब अवाम में घुल मिल गई, बच्चों और लड़कियों के साथ सेल्फियां। मरियम औरंगजेब की दुकानदारों और शहरियों से गुफ्तगू, हुकूमती इक़दामात पर इजहार इत्मीनान किया। लाहौर में 25 साल बाद बसंत फेस्टिवल की बहाली पर शहरियों का भरपूर खैर मकदम। जो कि डोर और पतंग मना है वो शहरी इस्तेमाल ना करें वरना एक्शन होगा। सीनियर वज़ीर पंजाब ने ऐसा कहा। सेफ्टी रॉड के बगैर मोटरसाइकिल घर से बाहर ना निकाले। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि बसंत के दौरान ट्रैफिक रूट्स और मुतबादिल रास्तों की मौसर मनसूबा बंदी की हिदायत भी की है। आपको अपडेट करते चलें कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर रात गए मरियम औरंगजेब का अंदरून शहर का दौरा। सीनियर वज़ीर का मोची गेट समेत दीगर गुंजान इलाकों में बसंत इंतजामात का तफसीली जायजा। बाजारों में फरोख्त QR कोड पतंगों के साइज, चरखी के बगैर QR कोड डोर का मुआयना। सीनियर वज़ीर पंजाब ने बसंत को महफूज बनाने के लिए SOPs पर अमल दरामद की जांच की। मरियम औरंगजेब अवाम में घुल मिल गई, बच्चों और लड़कियों के साथ सेल्फियां ली। मरियम औरंगजेब की दुकानदारों और शहरियों से गुफ्तगू, हुकूमती इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। लाहौर में 25 साल बाद बसंत फेस्टिवल की बहाली पर शहरियों का भरपूर खैर मकदम। जो डोर और पतंग मना है वो शहरी इस्तेमाल ना करे वरना एक्शन होगा। सीनियर वज़ीर पंजाब ने मजीद कहा कि शहरी सेफ्टी रॉड के बगैर मोटरसाइकिल घर से बाहर ना निकाले। बसंत के दौरान ट्रैफिक रूट्स और मुतबादिल रास्तों की मौसर मनसूबा बंदी की भी हिदायत की है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर रात गए मरियम औरंगजेब का अंदरून शहर का दौरा। सीनियर वज़ीर का मोची गेट समेत दीगर गुंजान इलाकों में बसंत इंतजामात का तफसीली जायजा। बाजारों में फरोख्त QR कोड पतंगों के साइज और चरखी के बगैर QR कोड डोर का मुआयना भी किया गया है। जबकि सीनियर वज़ीर पंजाब ने बसंत को महफूज बनाने के लिए SOPs पर अमल दरामद की जांच की है। मरियम औरंगजेब अवाम में घुल मिल गई, जबकि बच्चों और लड़कियों के साथ सेल्फियां भी बनवाईं। लाहौर शहर में बसंत की आमद है। शहरी जो हैं वो बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं बसंत के फेस्टिवल को मनाने के लिए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए भी बहुत ज़्यादा गहमा गहमी रही। शहर के मुख्तलिफ इलाके जिनमें लिबर्टी चौक है, उसके अलावा मोची गेट है, दिल्ली गेट है, यहाँ पर खूब रौनक है। इस वक्त भी मैं मोची गेट में मौजूद हूँ। सुबह सवेरे अभी दुकानें बंद हैं, लेकिन बड़ी तादाद में जो ख़रीदार हैं गुड्डों के, पतंगों के, वो यहाँ पहुँच चुके हैं। कुछ नौजवान शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो इस फेस्टिवल के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, कितने एक्साइटेड हैं और क्या आपने परचेज़ किया? पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा। बहुत देर से हमें इस चीज़ का इंतज़ार था, बहुत देर बाद ये मौका है जो हम मरीम नवाज़ का शुक्रिया अदा करते हैं। और वो बहुत अच्छे अच्छे काम भी कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि इस टाइम बहुत रेट हो गया, इतना के रेट हो गया कि हम फिर भी मनाएंगे बसंत जितने का भी होगा। इस टाइम मैंने आपके सामने 500 गुड्डा लिया है, ठीक है, बहुत मुश्किल से मुझे मिला है। और अभी भी वाम का रुझान बहुत ज़्यादा है और इनके पास माल पूरा नहीं हो पा रहा, ठीक है। और हम यही चाहेंगे कि सारा कुछ SOPs में रह के काम हो, सब कुछ हम देख के कर रहे हैं। नौजवान, आप मुझे बताएं आपने क्या क्या तैयारियां की? हमने छतों पे पूरा इंतज़ाम किया हुआ है, कैंपिंग की हुई है, बारबेक्यू और लाइव कुकिंग का इंतज़ाम किया हुआ है। इंशाल्लाह हम बड़े पुरजोश तरीके के साथ बसंत मनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और शहरी भी हमारे साथ नौजवान मौजूद है। नौजवान, आपने पिछली बसंत मनाई थी और इस बसंत में क्या प्लान है? इस बसंत पे हमारे प्लान तो फुल हैं, लेकिन पिछली बसंत में हम थे 7-8 साल के, क्योंकि हम लोग जेनजी नहीं हैं और हमने लास्ट बसंत देखी हुई है कि कैसी गुजरी थी। इस बसंत पे ये कि महंगाई बहुत ज़्यादा, गुड्डा जो 1.5 तवा, अभी आप हमारे साथ मोची में खड़े हुए हैं, 1500 रुपये का 1.5 तवा दे रहे हैं। ये सरासर ज़्यादती और जुल्म है।
लेकिन फिर भी हमने बसंत तो मनानी है। हम ये इकट्ठे आए हैं, हमने 500 जो गुड्डा ले लिया हुआ है, वो भी हमने सारी रात इधर घूम फिर के फिर हमने लिया है। गुज़िश्ता रोज़ काइट फ्लाइंग एसोसिएशन की जानिब से एक डेटा भी सामने आया था। 4 रोज़ में लाहौर के अंदर तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ से ज़ायद बिज़नेस हो चुका है। गुड्डी डोरों की, पतंगों की ख़रीदो फरोख्त हो चुकी है। जेन ज़ी के अलावा यहाँ पर जो मिलीनियल्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। इस बसंत को वो भरपूर तरीके से मनाएंगे, गुड्डे गुड्डियाँ उड़ाएंगे और अपने घरों पर, उन्होंने छतों पर, घरों पर बारबेक्यू का और खानों का बंदोबस्त भी किया हुआ है। जी।